Hare Nama Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva 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 Gatiranyata Hare Nama Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva 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 Gatiranyata Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Nana Shastra Vicharani Kamikamishan Dharma Samsthapak Loka Nam Hitkarina Tribhuvan Manu Sharanyakaro Shri Radha Krishna Padaravinda Bhajanananda Namastaliko Vande Rup Sanatana Prabhujuga Shri Jivi Gopala Sarvasya Chaham Vidhi Samavishta Mastasmati Jnanam Apohanam Cha Vedescha Sarve Ami Vidya Vedantaka Thodvide Vicharam. Hare Krishna. I hope my voice is clear. मेरा आवाज आ रहा है ना सबको? जी आ रहा है. Yes. Thank you. तो जैसा हम लोग हमेशा करते हैं, स्टार्ट करने के पहले हम लोग रिकैप करते हैं एंड विल सी लास्ट वीक हमने क्या देखा था. Does anybody recollect what we had seen last week? Okay, I can try. Hare Krishna. Yeah, please. Yeah. I think here we continue to discuss how Arjuna is actually, giving reasons why not to fight. I think it started out by him putting his Gandhi down. You described the Mahima of the Gandhi, what is attachment to the Gandhi. So it is something that's not, light. He doesn't, put it down that easily because he's, attached to it so much. And he's also getting the reactions like, somebody who's in either excitement or distress. But here we can clearly see that whatever reactions, physical reactions that Arjuna is having, such as, the shaking, trembling, and the goosebumps, and all that is actually because he is in deep distress. So these things actually show that there is some distress, and what is the reason for the distress is because now he's having doubts about whether to go ahead and fight or not. Then he goes ahead and starts, giving various reasons as to why he should not fight, and we discuss some of them. And the interesting thing here is he refers to Krishna by different names like Govinda, but with a inner meaning, or Madhusudan, because Govinda means somebody who brings joy to the senses. But what is happening here is not bringing joy to the senses. Or Madhusudan. Madhusudan means the killer of the Madhu demon. So he's telling Krishna, you killed enemies, but you're asking me to kill my own, family and relatives. So I think we stop there with these reasonings by Arjuna as to why he should not fight. Prabhuji, you're muted. Can't hear you, Prabhuji. Sorry, I was on mute. Okay. So thank you very much. So today we will see further ahead. So does anybody remember what are the 5 reasons Arjuna doesn't want to fight? Arjuna gave 5 reasons he doesn't want to fight. Compassion, loss of enjoyment, sinfulness, then destruction of the family tradition, and indecision. Don't know whether fighting is right or wrong. Yeah, these are the 5 reasons Arjuna had given. And out of this, we have seen 2. One was compassion. He was feeling compassionate that how could I kill my own grandparents, my teacher, the one who has loved me so much. So how can I kill them? So this was one reason. Second reason was loss of enjoyment. He was saying that
if I fight and if I kill them, it will be more harmful. Like we took an example of anything we get as a trophy or something. More than the trophy, it's just a physical thing. But the more happiness what we get, what we derive is from showing it to our parents, showing it to our family members, our friends, and we when they appreciate that, that makes us more happy than that physical trophy. So he was saying another reason was loss of enjoyment. Like if everybody is gone, if we say like there is a match between four countries, and if all of them are gone, so with whom we are going to enjoy this? So this is one reason. So till now we have seen two reasons. So we'll go ahead and we'll see today what Arjuna is saying. We have taken till shloka number 35. Today we'll take shloka number 36. I will share that. So if somebody wants to chant, he can repeat after me. Papam evashrayedasman Papam iva srid asman atvaitanatatainah atvetanah tatainah tasmannaraha vayam hantum tasmannaraha vayam hantun dhartarashtraन् sabandhavan dhartarashtran sabandhavan swajanam hi katham hatva swajanam hi katham hatva sukhinah syama madhava. sukhinah syama madhavah. Thank you. We'll see the translation and purport as done. This is Bhaktivedanta Swami Prabhupada, Jai Shri Prabhupada. So what Arjuna is saying, sin will overcome us if we slay such aggressors. Therefore, it is not proper for us to kill the sons of Dhritarashtra and our friends. What should we gain, O Krishna, husband of goddess of fortune? And how can we be happy by killing our own kinsmen? So what यहाँ पे वो क्या बोल रहे हैं अर्जुन कि पापम एवाश्रयेद अस्मान हत्वैतान आततायिनः, मतलब पापम हमें पाप will get sinful reactions. Hatvaitan, and how is that? Hatvaitan atatayinah, means by killing this atatai. So we know this Hindi word atatai. It is also in Sanskrit word. Atatai is one who are aggressors. So there are 6 kind of aggressors which Prabhupada says in the purport. One is one who gives poison, one who sets fire to the house, one who attacks with deadly weapons, one who plunders riches, one who occupies another's land, and one who kidnaps wife. So these 6 people are atatais. And as per Shastra, अगर शास्त्रों के हिसाब से देखें तो it is okay to kill them. हम उसका वध कर सकते हैं. तो that's why Arjuna is saying, Arjuna also, if you see, earlier he was talking about Swajanam, they are my own kinsmen. And अब जो है he understands कि इन्होंने मेरे पत्नी का जो है दुर्व्यवहार किया था, उसको भरी सभा में उसको निर्वस्त्र करने का प्रयास किया गया था. They try to disrobe and this मतलब try to give poison. तो हमने देखा कि भीम को भी बचपन में इन्होंने जो था इनको पॉइजन देके मारने का प्रयास किया गया था इनको. तो प्रभुपाद सेज कि ये 6 के 6 जो हैं, जो रीजंस हैं, जो आतताई की जो लक्षण है, दे वर सीन. इनमें हम जो दुर्योधन जो पार्टी थी, जो सामने कौरव खड़े थे, ये उनके साथ किया हुआ था. एंड इनको मतलब इतना दुर्व्यवहार किया गया इनके साथ में कि दे वर रियली सफरिंग.
एंड दे ही अंडरस्टूड, अर्जुना मतलब ये जानता था कि ये आतताई हैं, इन्होंने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया है। बट यहाँ पे अर्जुन आउट ऑफ कंपैशन वो ये कह रहा है, वो करुणा अवश्य कह रहा है कि भले ही आतताई हो, लेकिन इनको अगर मैं मारूंगा तो मुझे पाप लगेगा, सिर्फ मुझे पाप लगेगा। और फिर आगे कहते हैं ओ कृष्णा, यानी वो ये कह रहे हैं कि हे माधव, माधव यानी यहाँ पे भगवान कृष्ण को माधव कहा गया है। तो माधव का जो अर्थ है यहाँ पे प्रभुपाद देते हैं, हस्बैंड ऑफ गॉडेस ऑफ फॉर्चून, यानी लक्ष्मी के जो लक्ष्मीपति हैं उनको माधव कहा जाता है। तो गॉडेस ऑफ फॉर्चून यानी सिर्फ जो है अच्छा भाग्य जिससे प्राप्त होता है, आप उनके पति हो। ये माधव, तो आप ऐसा काम क्यों करवा रहे हो कि मुझ पे मिसफॉर्चून आएगा? Why are you making me to do such work will only attract misfortune? तो इसीलिए वो जो है माधव, जैसे हमने पहले भी देखा कि ही इज कॉलिंग कृष्णा बाय डिफरेंट नेम्स, जनार्दना, गोविंदा। तो यहाँ पे आज जो है ही इज कॉलिंग माधव बिकॉज ही डजंट वांट दैट, बिकॉज ही इज मतलब अर्जुना इज थिंकिंग कि if you fight it is only going to bring misfortune, so that's why he doesn't want to fight. So from today we'll see the third reason is starting, and the third reason is he's saying it will incur only sins. So first was compassion, second was loss of enjoyment, and third is incurring sinful reactions. So he's saying we are only going to get sins. So although they are atatais. So if you see Duryodhana had tried to disrobe Draupadi, and he had tried to kill Bhima, and all this मतलब they were dealt very badly, बहुत ज़्यादा दुर्व्यवहार किया था उन्होंने। और इट इज सेड इन द अर्थशास्त्र, प्रभुपाद लिखते हैं कि अर्थशास्त्र के हिसाब से इट इज ओके टू किल अ आतताई, बट हियर Arjuna being a devotee, he is not talking from the point of view of अर्थशास्त्र, वो धर्मशास्त्र के लेवल पे बात कर रहे हैं। अर्थशास्त्र के हिसाब से saying it is okay, but as per धर्मशास्त्र I am not supposed to kill them because it is going to only incur sin, so he doesn't want to do that. And प्रभुपाद जी मतलब इनका भगवान रामचंद्र जी का भी उदाहरण देते हैं कि कैसे मतलब भगवान रामचंद्र जो थे उन्होंने कितना अच्छा राज्य किया, पीपल वेर सो हैप्पी, एंड टिल टुडे मतलब आज तक बोलते राम राज्य की बात होती है कि हमें भगवान रामचंद्र की तरह जो है राज्य होना चाहिए। सो ही वाज सो कंपैशनेट, ही वाज सो मतलब इतने अच्छे राजा थे, लेकिन देयर इज नो कावर्डिस उसमें। व्हाट इज दैट हिंदी वर्ड फॉर कावर्डिस, मतलब भगोड़े नहीं होते, मतलब जो क्षत्रिय होते हैं। जब भगवान रामचंद्र की पत्नी सीता मैया का अपहरण जब रावण ने किया तो इमीडिएटली ही वेंट एंड चस्टाइज्ड, उसने रावण को दंडित किया उन्होंने। तो दिस इज व्हाट प्रभुपाद इज सेइंग कि जब अगर कोई ऐसा काम करता है तो इट इज ओके, वी कैन डू दैट, लेकिन अर्जुन आउट ऑफ कंपैशन and out of fear of sinful reaction he is saying we should not do that. और एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पे अर्जुन जो है इवन आतताई में इवन पितामह भीष्म और द्रोणाचार्य जी को भी वहाँ पे गिन रहे हैं, क्योंकि वो भी जो है उन आतताइयों के साथ में है। तो जो गलत को सपोर्ट करता है वो भी गलत होता है। तो हमने देखा कि कैसे पितामह भीष्म इतने महान थे, वो सच अ ग्रेट सोल, उनका हमने हिस्ट्री देखा था लास्ट टाइम। तो इतना सब होने के बावजूद भी अगर वो गलत का सपोर्ट करते हैं, दुर्योधन जैसे पर्सनालिटी का सपोर्ट करते हैं, तो ही इज ऑल्सो रॉन्ग। तो ये एक पॉइंट हमारे आचार्य कुछ कहते हैं। फिर आगे कहते हैं कि प्रभुपाद जी पॉपट में बहुत एक अच्छा पॉइंट यहाँ पे उठाते हैं कि इनको पॉलिटिकल रीजंस की वजह से
मार सकते हैं, बट हम लोग जो है वी आर मतलब वेरी नाइसली Prabhupada writes, such injunctions for stately persons are more important than any political emergency. भले political reasons are there कि हम लोग we can kill them, but जो saintly persons जैसे हमने देखा पिछले बार कि अर्जुन he was so मतलब इतने अच्छे भक्त थे कि उसके मन में करुणा आई, दुर्योधन के मन में कभी नहीं आया ये विचार, एक थोड़ा सा भी एक लेश मात्र विचार नहीं आया कि आई शुड फॉरगिव देम, जाने दो, चलो इनका ही राज्य है ना, मैं आधा में रख लेता हूँ, आधा ऐसा नहीं। उसके विपरीत ऑन द कॉन्ट्ररी अर्जुना इज रेडी टू गिव एवरीथिंग, बोला सब कुछ आप रख लो लेकिन मैं युद्ध नहीं करूंगा। सो दैट इज अ सेंटली क्वालिटी विच अर्जुना हैड। और हमने लास्ट टाइम देखा था कि कैसे जो भगवान के भक्त होते हैं उनमें ऑटोमेटिकली सारे अच्छे गुण होते हैं उनके अंदर उनको स्पेशल उनको कुछ ऐसा एक्सरसाइज नहीं करना पड़ता कि मुझे अच्छा आदमी अच्छा व्यक्ति बनना है। तो दिस इज वन पॉइंट। और या दिस इज इन श्लोका नंबर 36। तो अगला श्लोक हम लोग देखते हैं, श्लोका नंबर 37 और 38 कंबाइंड है। See that 37, 38 यद्यप्येतेन पश्यन्ति यद्यप्येतेन पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः लोभोपहत्य चेतसः कुलक्षय कृतं दोषम् कुलक्षय कृतं दोषम् मित्रद्रोहे च पातकम्। मित्रद्रोहे च पातकम्। 38 कथं न ज्ञेयम् अस्माभिः कथं नेयज्ञम् अस्माभिः पापाद् अस्मान् निवर्तितुम्। पापादस्मान् निवर्तितुम्। कुलक्षय कृतं दोषम् कुलक्षय कृतं दोषम् प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। हम लोग देखते हैं इसका ट्रांसलेशन। ओ जनार्दन, all these men, their hearts overtaken by greed, see no fault in killing one's family or quarreling with friends. Why should we, who can see the crime in destroying a family, engage in these acts of sin? तो यहाँ पे अर्जुन क्या कह रहे हैं, लोभ अपहत चेतसः, यानी इनका जो चेतना है लोभ अपहत, यानी लोभ से ये जो इनका चेतना है वो अपहृत हो गया है, मतलब ओवर, उनका चेतना कॉन्शियसनेस जो है पूरा इट हैज बीन ओवरकम बाय ग्रिड, और इसीलिए ये लोग जो है देख नहीं पा रहे हैं। और इससे क्या होगा, तो बोल रहे हैं कि कुल क्षय कृतम दोषम, और कुल का क्षय यानी खत्म करने का जो दोष है वो लगेगा, विल गेट द सिन ऑफ डिस्ट्रॉइंग अ फैमिली, एंड मित्र द्रोहे च पातकम, यानी मित्र द्रोह यानी पहले के ज़माने में मतलब मित्र द्रोह यानी टू डिसीव अ फ्रेंड, दैट वाज आल्सो अ बिग सिन। तो बोल रहे कि ये सब हमारे मित्र ही हैं, तो मित्र द्रोह करने का पाप मुझे लगेगा। तो दिस इज व्हाट ही इज सेइंग। और आगे कहते हैं कि लेकिन इनको तो दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन हमें तो दिख रहा है ना। तो कथम न ज्ञेयम अस्माभिः, हम लोग जब देख रहे हैं हम लोग, तो हम लोग ऐसे प्रकार के कुलक्षय कृतम दोषम, तो इसी ये वर्ड दो बार यहाँ पे आया है,
श्लोका नंबर 37 में भी, श्लोका नंबर 38 में भी, कि जब हम लोग देख रहे हैं कि कुलक्षय कृत जो है कुलक्षय का कुल का क्षय होने वाला है, तो ऐसे दोष को हम क्यों ले हम लोग, और वो प्रपश्यत भी जनार्दन है। तो वापिस जो है अर्जुन भगवान को जनार्दन कह रहे हैं। तो हम लोग ने जैसे लास्ट टाइम देखा, जनार्दन इज मेंटेनर ऑफ द लिविंग बींग्स, सारे जन का जो अर्दन करते हैं, लोगों का जो पालन करते हैं, उनको जनार्दन कहते हैं। तो हमको पालन करना है, तो आप क्यों इसका नाश करने के लिए, तो कुल का नाश करने के लिए क्यों कह रहे हैं? तो ये यहाँ पे इस श्लोक में आता है। और यहाँ पे प्रभुपाद जी तात्पर्य में बहुत अच्छा एक पॉइंट बोलते हैं कि क्षत्रिय इज नॉट सपोज टू रिफ्यूज टू बैटल और गैम्बल एंड ही इज सो इन्वाइटेड बाय राइवल पार्टी। प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब अगर कोई युद्ध के लिए ललकारता है या दूध क्रीड़ा के लिए ललकारता है कि आओ मुझसे तुम युद्ध करो, तो ही कैन नॉट रिफ्यूज। क्षत्रियों का जो एक क्वालिटी होता है कि जब भी ऐसे कोई अगर युद्ध के लिए ललकारता है, तो ही नेवर रिफ्यूजेस, वो कभी उसको मना नहीं कर सकता, फिर भले कैसा भी हो, वो उससे बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो या उससे कम शक्तिशाली हो। अगर कोई क्षत्रिय को ललकारता है तो ही हैज़ टू फाइट। एंड उसी प्रकार हमें देखते हैं कि कई बार ऐसे मतलब युद्ध हुए हैं इसके वजह से इन हिस्ट्री, सो मच वॉर हैज़ हैपेंड। और इवन हम लोग देखते हैं कि युधिष्ठिर महाराज को द्यूत के लिए उनको बुलाया गया। युधिष्ठिर महाराज जानते थे ये गलत है, लेकिन फिर भी वो क्षत्रिय होने के कारण उनको वो द्यूत में भाग लेना पड़ा उनको। ही न्यू इट इज द्यूत जो है वो गलत है। और वैसे ही अगर कोई जो है कोई लेडी, कोई स्त्री अगर किसी क्षत्रिय को मतलब विवाह के लिए प्रपोज करती है, तो ही कैन नॉट रिफ्यूज दैट। एंड हिडिंबा जब एक्चुअली उसने प्रपोज किया भीम को, ये सारे जो थे वंश में जब थे, और हिडिंब नाम का जो राक्षस ने जब उनके ऊपर प्रहार किया, तो भीम ने उसे मार दिया। तो वो भीम से इतनी प्रभावित हो गई, सो मच अट्रैक्टेड, कि उसने मतलब कहा वो राक्षस नहीं थी, शी वाज। तो जस्ट इमेजिन हाउ अट्रैक्टिव पर्सनालिटी भीम मस्ट बी, कि एक राक्षस ने उनकी तरफ आकर्षित हो गए, बोले कि मुझे इनसे शादी करनी है। तो बोले नहीं, तू राक्षस ने तुझसे शादी नहीं कर सकता। एंड शी गोज एंड बेग्स कुंती महारानी को बोलती है कि मुझे इनसे विवाह करना है। तो कुंती भी उनको फिर फोर्स करती है, तो उनको वो विवाह मतलब वो करते हैं वो उनसे। तो देयर आर सम फ्यू सर्टन रेगुलेशंस फॉर क्षत्रिय विच प्रभुपाद इज मेंशनिंग हियर, बताते हैं, तो विच दे कैन नॉट रिफ्यूज। और फिर प्रभुपाद जी यहाँ पे कहते हैं कि बहुत अच्छा एक पॉइंट बोलते हैं, ऑब्लिगेशन इज एक्चुअली बाइंडिंग व्हेन द इफेक्ट इज गुड। एन इंटेलिजेंट पर्सन, भले देयर इज सम बाइंडिंग, कुछ उसमें ऑब्लिगेशंस हैं, लेकिन उसका एंड रिजल्ट अगर अच्छा नहीं है, इट इज गोइंग टू बी हेलिश, देन ही कैन रिफ्यूज इट। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी इस पॉइंट को हाईलाइट कर रहे हैं, और इसीलिए इसी बेसिस पे अर्जुन जो है वो बोल रहे हैं कि मुझे युद्ध नहीं करना है। और यहाँ पे प्रभुपाद जी अपने एक लेक्चर में कहते हैं कुलक्षय कृतम दोषम, जो कुल का जो क्षय है, हाउ इम्पोर्टेंट इट इज। कुल का क्षय होने में क्या मतलब क्या नुकसान है, इफ समबडी कैन थिंक, मतलब कुल का नाश होने से क्या होगा। बट इफ सी अगर किसी कुल का नाश होता है तो उनको पुत्र नहीं होंगे। अगर पुत्र नहीं होंगे तो वो पुत्र जो है अपना पिता का तर्पण नहीं कर पाएंगे, उनका जो रिचुअल्स होता है, श्राद्ध सेरेमनी वगैरह सब होता है, विल नॉट बी एबल टू डू दैट। और ऐसा करने से जो है सारे कुल का नाश हो जाता है। तो ये प्रभुपाद जी एक लेक्चर में इस पॉइंट को हाईलाइट करते हैं। और फिर आगे यहाँ पे इवन अर्जुना इज रेडी टू, बोला कि ये भले, हम लोग आगे देखेंगे इस श्लोक में कि अर्जुना मतलब यहाँ तक बोलते हैं कि वो भले मुझे मार दें, बट आई विल नॉट गोइंग टू किल देम। और वो ये भी बोलते हैं कि इनका जो चेतना है वो लोभ और उपहत है, यानी लोभ से आवृत हो गया है, तो
मैं ऐसा नहीं हूँ, मुझ में कोई लोभ नहीं, आई डोंट वांट टू फाइट। तो यहाँ पे हमारे एक वैष्णव है चैतन्य चरण प्रभु, वो बहुत अच्छा एक अपना एनालिसिस देते हैं। वो बोलते हैं कि जब आदमी लोभ से ग्रस्त हो जाता है, इज सो ग्रीडी, तो उसका सारा कॉन्शियसनेस जो है इतना श्रिंक हो जाता है कि वो सिर्फ उसका फोकस जो है वो सिर्फ उस बेनिफिट पे होता है, वो बाकी लेकिन उसका जो बुरा प्रभाव है, दुष्प्रभाव है, इल इफेक्ट्स है, उसको कुछ दिखाई नहीं देता। वो खाली इतना फोकस करते हैं उस बात पे कि मुझे सिर्फ, मतलब वो बहुत अच्छा टर्म यूज करता है, टनल विजन बोलते हैं। उसका इतना सा टनल में हम लोग जब टनल में सब गुजरते हैं तो हम लोग को सिर्फ एंड ऑफ द टनल एक छोटा सा हमको लाइट दिखाई देता, तो उनका फोकस भी वैसे ही होता है, मुझे सिर्फ वो वहां तक जाना है, तो वहाँ वो जो बेनिफिट है मुझे वहां तक पहुंचना है। तो दे बिकम वेरी कंजर्वेटिव इन देयर थिंकिंग एंड दे डोंट थिंक बियॉन्ड दैट प्रॉफिट। तो ये एक बात वो यहाँ पे कहते हैं। और एक बात कहते हैं कि ऐसी चेतना में वो कहते हैं कि भले हमसे कोई कुछ कैसा व्यवहार करे, लेकिन हमको अगर कोई मतलब गुस्से में हमको कुछ बोल रहा है, डांट रहा है, तो अर्जुना इज थिंकिंग कि व्हाई शुड आई रिएक्ट इन दैट सेम, मतलब ऐसे क्यों रिस्पॉन्ड करूं। बोलते हैं चैतन्य चरण प्रभु बोलते हैं कि अगर कोई व्यक्ति नीचे के स्तर पर उतरकर हमसे बिहेव कर रहा है तो वी हैव टू यूज आवर इंटेलिजेंस, मुझे उसके लेवल पे नीचे जाके आई डोंट हैव टू रिएक्ट। तो इसके लिए अर्जुना जो है मतलब वो ये कह रहे हैं कि इनके मन में लोभ है और इसकी वजह से इन्होंने ये सब बुरा काम किया है आज तक, एंड टुडे दे वांट टू फाइट। लेकिन मैं ये देख पा रहा हूँ कि मुझे उनके लेवल तक नीचे तक नहीं जाना, कि मुझे भी राज्य चाहिए। तो यहाँ पे वो एक बहुत अच्छा पॉइंट बोलते हैं कि जो एक एग्जांपल देते हैं एक मेंटल असाइलम का। अगर कोई व्यक्ति वहाँ पे किसी कारण से जाता है तो हो सकता है वहाँ पे ही कम अक्रॉस कोई पागल के उससे भिड़ जाता है और वो उनको चिल्लाना शुरू करता है, मारना शुरू करता है। तो व्हाट शुड बी हिज रिएक्शन, वेदर ही शुड डू द सेम थिंग, वो भी उसको चिल्लाए, उसको गाली दे, उसको मारे? नहीं, बिकॉज ही नोस कि ये तो अरे पागल है, इसको तो मतलब बुद्धि है ही नहीं। तो जैसे भौतिक रूप से ही हैज लॉस्ट हिज इंटेलिजेंस, वैसे ही अगर हम देखते हैं स्पिरिचुअली, जब लोग अपना जब इंटेलिजेंस खो देते हैं कि मेरे लिए क्या अच्छा है, मेरे उद्धार के लिए क्या अच्छा है, मेरे स्पिरिचुअल बेनिफिट के लिए क्या अच्छा है, तो दे बिहेव इन दैट वे, वो मतलब दुर्व्यवहार करते हैं आपसे। तो इसके लिए हमें नीचे उतर के हमें भी उसकी तरह उससे रिएक्ट करने का मतलब हमें ज़रूरत नहीं है। एटलीस्ट वी आर इंटेलिजेंट, वी शुड थिंक, एंड दिस इज द रीजन अर्जुना इज सेइंग आई डोंट वांट टू फाइट। इफ दे वांट टू फाइट, लेट देम फाइट, बट आई एम नॉट गोइंग टू रिएक्ट इन द सेम वे। ये एक बहुत अच्छा पॉइंट वो यहाँ पे बोलते हैं। तो this was shloka number 37 and 38, and हम लोग देखते हैं अब श्लोका नंबर 39। we'll go to श्लोका नंबर 39। श्लोका नंबर 39। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः कुलधर्मा सनातनः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् धर्मे नष्टे कुलं कृष्णम् अधर्मो अभिभवत् उत अधर्मो अभिवत् उत। थैंक यू। तो हम लोग इसका ट्रांसलेशन देखते हैं। ट्रांसलेशन संध्रुपद। तो यहाँ पे आगे कह रहे हैं, विद द डिस्ट्रक्शन ऑफ डायनेस्टी द एटर्नल फैमिली ट्रेडिशन इज वैंक्विश्ड एंड दस द रेस्ट ऑफ द फैमिली बिकम्स इन्वॉल्व्ड इन ए रिलीजन। तो यहाँ पे वो और एक रीज़न मतलब जो कंटिन्यू कर रहे हैं उनका वही जो रीज़न है
कि पहले हमने देखा कंपैशन, सेकंड वाज लॉस ऑफ एंजॉयमेंट, थर्ड वाज सिंफुल रिएक्शन। तो ये जो है यहाँ पे अब वो चौथा रीजन दे रहे हैं कि क्या होगा, फैमिली ट्रेडिशंस जो है वो नष्ट हो जाएंगे। तो विल सी द इम्पोर्टेंस, ये रीजन क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। वो बोलते हैं जब किसी कुल का नाश हो जाता है तो उस कुल में जो फैमिली वैल्यूज होती है, जो हमें हमारे जो सीनियर्स होते हैं, हमारे जो बड़े होते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, उनसे हमको मिलते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि अर्जुन जब युद्ध के लिए खड़ा था, उसके 3 जनरेशंस बिफोर, उनके पहले से उनके दादाजी के पिताजी भी मौजूद थे वहाँ पे, उस कैलिबर के लोग भी वहाँ पे उपस्थित थे। अगर ये सारे मारे गए तो फैमिली वैल्यूज जो है वो कौन अब पास ऑन करेगा। जो औरतें तो लेडीज, दे विल ऑल बिकम विडो एंड देयर विल बी नोबडी टू गाइड द चिल्ड्रन। जो छोटे बच्चे हैं जो इस युद्ध में भाग नहीं ले रहे हैं, जो बहुत छोटे हैं, तो उनको कौन सिखाएगा। और हम लोग भी जब देखते हैं, हम लोग आजकल तो आई डोंट नो इतना होता है, लेकिन काफ़ी वर्ष पहले ना, हमारे टाइम पे हमारी जो दादी थी या दादा थे, वो हमको कहानी सुनाया करते थे। वो भगवान राम जी के बारे में, भगवान कृष्ण के बारे में वो कथा सुनाया करते थे कि भगवान राम ने ऐसा किया, या तो कुछ नहीं तो एटलीस्ट वो जो है मतलब मॉरल स्टोरीज, हितोपदेश से कोई कथा या पंचतंत्र की कोई कथा, एंड दे यूज्ड टू इंस्टिल जो एक कल्चर जो था, एक अच्छा एक ह्यूमन बिहेवियर कैसा होना चाहिए। तो हमारे शास्त्रों में बहुत अच्छा तरह से इसको डिपिक्ट किया गया है, उसमें इतिहासों में दिया गया है। और वही चीज़ जो है हमको बता बता के हमको बचपन से हमारे में वो वैल्यूज हमारे में ठूस ठूस के भरते हैं। लेकिन आज जो है मतलब इतना आई डोंट नो मतलब वेदर ग्रैंड पेरेंट्स आर पासिंग ऑन दैट मच नॉलेज और नॉट। एक तो है कि रीज़न की फैमिली भी इतना छोटा होते जा रहा है, तो दैट्स वाई दैट अगर हम लोग देखें आजकल के जो बच्चे हैं, वो उतना शायद उनमें उनमें जो फैमिली वैल्यूज, जो ट्रेडिशन या कल्चर जो होना चाहिए था, वो उतना नहीं है। एंड इसकी वजह से इतने बच्चे बिगड़ भी रहे हैं। आजकल के जो बच्चे देखते हैं कि बहुत बिगड़ रहे हैं, तो दैट इज ऑल्सो रीज़न, क्योंकि वो जो फैमिली वैल्यूज हैं वो उनको नहीं मिल रहा है, उनको देयर इज नोबडी टू गाइड देम। और यही बात अर्जुन 5000 वर्ष पहले उस बारे में सोच रहे हैं कि ये अगर सारे मर गए, सारे जो है युद्ध पे खड़े हैं, ये इतने सीनियर लोग हैं, तो ये सारा जो ट्रेडिशन है हमारा नाश हो जाएगा। और वो बोल रहे हैं कि इसका कारण भी मैं बनूंगा, विल सी दैट फर्दर अहेड। तो बोले कुलक्षय प्रणश्यंति कुल धर्म सनातन। तो प्रणश्यंति यानी जो नाश हो जाएगा, क्या, कुल धर्म, जो कुल धर्म है सनातन, उसका नाश हो जाएगा। और वो बहुत अच्छा एक पॉइंट ये भी बोलते हैं, कुल धर्मे धर्मे नष्ट कुलम कृत्स्नम अधर्म अभिभवत उति। और बोलते हैं ऐसा कहा जाता है कि धर्म का नाश होने से कुल का भी नाश हो जाता है। रेस्ट ऑफ द फैमिली बिकम्स इन्वॉल्व इन रिलीजन। जब धर्म का नाश होगा तो ऑटोमेटिकली, जब धर्म नहीं है तो ऑटोमेटिकली जो है अधर्म की तरफ बढ़ जाएंगे। जैसे हम लोग आजकल के कई सारे इसमें यूएस कंट्रीज में देख रहे हैं कि उनमें कोई स्पिरिचुअल वैल्यूज नहीं है। छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो बंदूक लेके वो स्कूल में पहुंच जाते हैं, कॉलेज में पहुंच जाते हैं, जस्ट स्टार्ट शूटिंग बिकॉज दे थिंक ये कोई एकदम साधारण बात है कि किल समबडी। तो हमारा आज का जो सभ्यता है, दैट इज अ बिग रीजन फॉर दिस। तो अर्जुन वाज वेरी इंटेलिजेंट एंड ही वाज थिंकिंग ऑन लॉट ऑफ एंगल्स, बहुत अलग अलग एंगल्स पे सोच रहे थे। और इसके लिए जो वो युद्ध के लिए मना कर रहे थे, बोले मुझे युद्ध नहीं करना है। तो दिस वाज वन मेन रीजन ही वाज सेइंग कि कुलक्षय प्रणश्यंति, कुल का जो है नाश हो जाएगा पूरा, इसके लिए मैं नहीं करना चाहता। और कुल का एक बार नाश हो गया तो ऑटोमेटिकली अधर्म जो और बढ़ जाएगा। तो सारा जो पॉइंट होता है कि धर्म का स्थापना करना है, धर्म को अच्छी तरह से। आज भी हम लोग हमेशा जब सोचते हैं कि हमेशा धर्म हैज टू बी प्रोटेक्टेड, अगर धर्म का प्रोटेक्शन नहीं होगा तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली अधर्म जो है वो बढ़ता जाएगा। एंड जब अधर्म बढ़ता है तो ऑटोमेटिकली आज के नहीं, पहले के ज़माने में देखे हम लोग, जो भगवान रामचंद्र थे,
विश्वामित्र मुनि उनके पास क्यों आए थे? क्योंकि जो राक्षस थे वो उनको जो था उनका जो अधार्मिक व्यवहार था वो उनको कोई यज्ञ करने नहीं देते थे। वो उनके यज्ञ मंडप में उनके आके मलमूत्र त्याग देते थे और उनको मार देते थे। तो इट वाज आज भी देख रहे हैं हम लोग ऐसे जो अधर्म जो है उतना ही बढ़ता जा रहा है। तो इसके लिए धर्म का होना बहुत जरूरी है। बोल रहे हैं कि अगर ये काम करूंगा तो अधर्म बढ़ेगा, तो इसका भी कारण मैं बनूंगा। So he doesn't want to be that. So he's giving today in this shloka is giving fourth reason कि डिस्ट्रक्शन ऑफ फैमिली ट्रेडिशन। जो फैमिली जो ट्रेडिशंस है वो सारे नष्ट हो जाएंगे, इसके लिए मैं युद्ध नहीं करना चाहता मैं। और फिर बहुत अच्छा पॉइंट है अभिभवती उता, मैंने सुना है। तो ही इज नॉट सेइंग मुझे ऐसा लगता है, ही इज सेइंग ये मैंने अपने जो बड़े हैं, जो अपने बुजुर्ग हैं, जो हायर अथॉरिटीज हैं, उनसे सुना है। ऐसा शास्त्रों में कहा गया है ऐसा कि ये जब होता है तो ऐसा होता है। तो ही इज गिविंग रीजन ऑन द बेसिस ऑफ हायर अथॉरिटीज। तो यहाँ पे ये एक पॉइंट है यहाँ पे। और तो ये चीज़ें हैं, ये सब रीजंस हैं हमारे जो है अर्जुन जो है वो कह रहे हैं कि मुझे युद्ध नहीं करना है। एंड ऑल दिस थिंग्स विल जो है और मतलब पतन का कारण ही बनेंगी। तो इसमें है, इसलिए हमको युद्ध नहीं करना चाहिए। ही इज पुटिंग द रीजंस यहाँ पे। तो 39 में इतना ही है, मैं रुकता हूँ यहाँ पे। विल कीप 2 minutes फॉर क्वेश्चन आंसर। आई एम श्योर आप लोगों का कोई डाउट्स होगा, कोई क्वेश्चंस होगा तो वी कैन टेक दैट। हरे कृष्णा। Prabhuji, I had a question. Prabhuji, muted. Yeah, okay. Yeah, sorry. Yes, Mataji. It's just a clarification on the Hidimba, this thing. I did not see the connection there. So basically, she goes and, she wants to marry Bean. Bean says no. And then she goes to Kunti for her approval. But what happens after that? What is it? Because I got the conclusion that sometimes, you can you can not perform your obligation if the outcome is not good. But what is the connection there? What really happened here after that? Actually, the point what I was trying to make was that Kshatriyas are not supposed to refuse. So even though she was a Rakshas category, like there are humans, Devatas and Rakshasas, so they are not supposed to marry a Rakshasa. But he being a Kshatriya, he had to accept that. And Kunti tells that you should marry her because she has proposed you. Okay, got it. Thank you. Yeah. Hare Krishna. प्रभु जी क्वेश्चन तो कुछ नहीं है आज लेकिन एक थोड़ी सी एक चीज जो ऑब्जर्वेशन है या फीलिंग है वो मैं थोड़ा सा एक डिस्कस करना चाहती हूँ कि अभी तक जो जितना हमने पढ़ा है, जो अर्जुन का अब थॉट प्रोसेस आया है कि उन्होंने पहले मुझे 36 में थोड़ा सा ये लग रहा था जब उन्होंने ये कहा कि क्षत्रिय तो हैं और इन 6 कैटेगरी के लोगों को मारना भी ओके है, लेकिन फिर बिकॉज अर्जुन हिमसेल्फ वाज सेंटली, so it was not, he thought that it was not appropriate for him to do so because more so they were family and all those things and reasons. तो ठीक है, यहाँ तक मुझे थोड़ा सा एंगर भी आ रहा था अर्जुन पे कि भाई इतना होने के बाद भी आप लेकिन फिर जैसे जैसे आगे बढ़े तो वहां पे ठीक है उनका थॉट प्रोसेस निकल के आया कि
ये उनके लिए करना ठीक है जिनको दिखाई नहीं दे रहा है। जिनको दिखाई दे रहा है कि इसमें हार्म है, वो क्यों अपना नुकसान करें। फिर आगे उन्होंने ये कहा कि अगर बड़े लोग डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो फिर फैमिली के ट्रेडिशंस पे डेफिनेटली फर्क पड़ता है। तो हियर व्हाट आई अंडरस्टैंड इज दैट अ थॉट प्रोसेस ऑफ अर्जुन फॉर द रीडर, जितना हमारे को समझ में आ रहा है, भाई अभी तक तो टीवी में ही देखा था, लेकिन जितना समझ में आ रहा है कि ठीक है, अर्जुन हैज गॉट अ स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर ऑफ हिज ओन एंड ही इज, मतलब उनका थॉट प्रोसेस अच्छा है, बहुत गलत नहीं है। लेकिन वो थॉट प्रोसेस भी अल्टीमेटली उनको एडवाइस किया गया कि नहीं, वो थॉट प्रोसेस ठीक नहीं है। आप, मैं कन्वे कर पा रही हूँ, मतलब इट्स जस्ट एन ऑब्जर्वेशन एंड जस्ट अ डिस्कशन, इट इज नॉट अ क्वेश्चन। आगे तो हमको पता नहीं है कि वो कि किस तरीके से, ठीक है, वो सब कुकर्मी थे और बैड पीपल थे, इसलिए उनको लड़ना जरूरी था। बट व्हाट आई जस्ट वांट टू से इज कि 30 जैसे जैसे ये वाला इमर्ज कर रहे हैं, ये वाले पैराग्राफ्स, तो हमको लग रहा है कि अर्जुन भी जो सोच रहा है वो गलत नहीं था, लेकिन श्री कृष्ण ने उसको भी ओवर रूल किया ही ना अल्टीमेटली, उनको ऑपोजिट चीज समझा के। आई एम सॉरी बट दैट इज जस्ट अ लेमैन नहीं माता जी, टर्म। आई एम बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन है माता जी कि although he was on the background of humanity बैकग्राउंड पे वो बोलते हैं कि मैं कैसे अपने दादा को मारूं, मैं कैसे अपने गुरु को मारूं, कुल का क्षय हो जाएगा, मुझे पाप लगेगा। मतलब वो ये भी बोलते हैं कि अगर मैं जीत भी गया और ये मारे गए तो ये तो सारे स्वर्ग चले जाएंगे, मैं राज्य में तो मिलेगा मुझे, लेकिन वो कुछ टाइम के लिए मिलेगा, बट फॉर एटर्निटी आई विल बी इन हेल। तो ये सब मैं क्यों लूं, ऑन दैट बेसिस ही इज सेइंग दैट। बट विल सी, जो ये 5 रीजन हैं, भगवान इसका आंसर भी जो है आगे देने वाले हैं इसका, कि हाउ ठीक है प्रभु जी, वही सो दैट इज वेरी नाइस कि अभी तक तो हमने खाली थोड़ा सा ही पढ़ा है, आगे जाके कैसे चीजें अनरैप होती हैं वो हमें बाद में ही पता चलेगा। बट अभी तक एक पैराग्राफ तक थोड़ा सा अर्जुन पे गुस्सा आ रहा था, लास्ट टाइम भी हमने ये डिस्कस किया था कि ये क्या है यार, मतलब इतना तुम्हारे साथ बुरा कर दिया तब भी तुमको मारने में क्या वो है, यू नो, बिकॉज वी आर नॉट ऑफ दैट जनरेशन एंड दोस टाइम्स। लेकिन आज लग रहा है कि नहीं, उनका थॉट प्रोसेस अच्छा है, फिर भी उनको कृष्ण जी ने उल्टा क्यों पढ़ा दिया ऐसा करके। तो भगवान कृष्ण वहां पे आगे उसको प्रूव करेंगे कि हाउ हिज थिंकिंग is correct in one way but fighting is more superior। वो आगे उनको प्रूव करके दिखाएंगे। वो विल सी दैट ये जो 5 रीजन देख रहे हैं हम लोग, पांचों कवर करेंगे। उसके बाद जब सेकंड चैप्टर में जाएंगे तो वहां से वो जो है उनको आंसर देना शुरू करेंगे, कंपैशन के लिए, लॉस ऑफ एंजॉयमेंट के लिए, सिंफुल रिएक्शंस के लिए, हर एक उनके जो डाउट है, जो 5 डाउट हैं इनके, वो हर एक का आंसर देंगे। दैट आल्सो विल सी इन डिटेल। थैंक यू प्रभु, हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी, हरे कृष्णा। गुड, आई एम हैप्पी आज मोनिका जी और चार्मी जी भी हैं आज। थैंक यू बोथ ऑफ यू। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आशीष जी, यू आर साइलेंट टुडे, सरप्राइजिंग। प्रभु जी, मैं अभी साइलेंट रहने वाला हूँ क्योंकि मुझे लगता है मेरे सारे आंसर्स बाद में आने वाले हैं, तो मेरे माइंड में बहुत कुछ चल रहा है, बट आई डोंट वांट टू आस्क बिकॉज मुझे वही देखना है कि आंसर्स कैसे मिलते हैं। नहीं, ये जो मैं जैसे बताया ना कि ये जो 5 जो अर्जुन के डाउट्स हैं, उनके जो रीजंस हैं युद्ध नहीं करना चाहिए, उन 5 को काउंटरएक्ट करेंगे भगवान श्री कृष्ण आगे विद फिलॉसफी। तुम जो बोल रहे हैं कि मारना, मैं तो वही आंसर ढूंढ रहा हूँ कि विद द फिलॉसफी मुझे डे टू डे में क्या करना चाहिए, मतलब ये इसीलिए आई एम वेटिंग कि आगे क्या अनफोल्ड हो रहा है, व्हाट इज कृष्ण अनफोल्डिंग इन आवर लाइफ। बहुत अच्छा। एक्चुअली देखें तो जो फर्स्ट चैप्टर है वो सिर्फ जो है मतलब सैन्य निरीक्षण है और अर्जुन के डाउट्स हैं। अक्सर भगवत गीता अगर हम लोग बोले तो सेकंड चैप्टर से शुरू होती है। तो स्पिरिचुअलिटी ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि someone comes and takes us for granted। मतलब मेरा थोड़ा मानना वैसा भी है कि
जैसे आपने बताया कि भगवान के भक्त है तो हमारे में वो सॉफ्टनेस क्वालिटीज बाय डिफॉल्ट आ ही जाती है, बट Yeah. बिकॉज ऑफ दैट सॉफ्टनेस डे टू डे लाइफ में ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई हमारा फायदा उठा के लेके जाए फायदा और उठाए। हम Yeah. हम उसी के आश्रय में कि नहीं मैं क्यों गलत करूं उसके चलते, नहीं तो कभी अंत का नाश ही नहीं होगा, नहीं तो ये तो Yeah, दौर चलता correct. ही रहेगा। जैसे हमने लास्ट टाइम भी वो एग्जांपल विशाखा माता जी ने दिया था कि वो लेडी के फैमिली को जला दिया था तो उसने फॉरगिव कर दिया। अंत का नाश कैसे होगा, मुझे वो जानना है कि अगर कोई भी मेरे से कोई गलत करता है और मैं उसको फॉरगिव, बिकॉज मैं हाई स्पिरिचुअल हूँ, मैं फॉरगिव कर देता हूँ, तो बिकॉज आजकल हम देख रहे हैं सब जगह पे, अभी देखो कश्मीर में भी काफी हिंदूज को मारा गया, हम यूएस में भी देख रहे काफी लोगों को बच्चे लोग को स्कूल और उसमें पार्किंग लॉट्स में जाके मारा गया हो। तो सारा ह्यूमन बीइंग अगर हम ऐसा स्पिरिचुअलिटी में हम माफ कर रहे हैं और कोई एक्शन ही नहीं ले रहे, तो अंत के जैसे कृष्ण को भी अर्जुन को जगाना पड़ा कि भाई तू तेरी सोच जो भी है बट तू जाग, तू क्षत्रिय है, तुझे अंत का नाश करना है। Yes, yes. आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू। नहीं मैं समझ गया प्रभु। एक्चुअली ये एक कॉमन मैन का एक ये डायलेमा रहता है कि ये मैं करूं ये नहीं करूं। बट अगर आप भगवत गीता अगर अच्छी तरह से स्टडी करेंगे, इफ यू अंडरस्टैंड द फिलोसफी प्रॉपरली, तो ओवरऑल में इन टोटलिटी, तो फिर ये कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि मुझे ये फाइट करना है या नहीं करना है। इसलिए मैंने मौन व्रत लिया है, अभी मैं मौन व्रत लेने वाला मुझे देखने तो आगे क्या हो रहा है। जस्ट टू ब्रीफ अप, मतलब ये बहुत आगे का है, लेकिन जस्ट टू एकदम संक्षिप्त में बताना, दिस विल डील इन डेप्थ इन फर्दर चैप्टर्स। एक्चुअली क्या होता है कि स्पिरिचुअलिटी तो हम लोग को हमेशा रखना है, जैसे जो है हम लोग वी हैव टू बी स्पिरिचुअल बीइंग्स एंड वी हैव टू फॉलो धर्म। लेकिन जब आतताई जब हम पे जब जुल्म करते हैं, तो भगवान कृष्ण भी उन्होंने उनको कहा कि तुम्हारे साथ अधर्म हुआ है, तुम अभी युद्ध करो, तो दैट इज टू बी डन। एंड दूसरा चीज ये भी याद रखना है कि वी हैव टू फॉरगिव कंसीडरिंग कर्मा, क्योंकि कर्मा जो होता है, जैसे हम लोग लास्ट टाइम भी बात कर रहे थे कि कर्मा, इफ समथिंग इज हैपनिंग टू यू आइदर गुड आइदर बैड, इट इज बिकॉज ऑफ योर पास्ट कर्मा, सो दैट कैन नॉट बी इग्नोर्ड। अगर आज मुझे किसी ने एक थप्पड़ मारा है तो मुझे उससे थप्पड़ नहीं मारना चाहिए मुझे, या तो फिर किसी ने मुझे बहुत मेरा आदर सत्कार कर रहा है तो आई डोंट हैव टू बी इलेटेड, अरे वाह 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 कितना मेरा ये नाम हो रहा है। तो दिस इज वी हैव टू रिमेन इक्विपॉइज्ड, ना ज्यादा दुख में दुखी होना है, ना मुझे सुख में सुखी होना है। दिस आल्सो विल कम लास्ट श्लोक में हमने लास्ट वीक में हमने ये भी पढ़ा कि वहां पे एक श्लोक में लिखा था कि अगर कोई बुरा कर रहा है तो हमें कुछ नहीं करना है, भगवान अपने आप से करेगा, मतलब हमें स्टेप नहीं लेना है, हमें एक रास्ते पे चलना है, बट भगवान उसका जो भी मतलब भगवान करेंगे जो करना है वो। श्योर एंड भगवान वचन देते हैं इस बात का कि न मैं भक्त प्रणश्यति, मेरा भक्त कभी नाश नहीं होगा। एंड इफ वी सी, भले पांडवों को इतनी दिक्कतें आई, इतने प्रॉब्लम्स आए, लेकिन उनका नाश नहीं हुआ, दे वर ऑलवेज प्रोटेक्टेड हर चीज में। जैसे द्रौपदी के जब ये अज्ञातवास में दुर्योधन ने जानबूझ के दुर्वासा मुनि को कहा था कि जब द्रौपदी खा ले तब जाना, क्योंकि उसको पता था इसके बाद अक्षय पात्र 10,000 के 20,000 लोगों को खिला सकती है। ही ट्रीट मतलब वो चीटेड, उसने बोला कि उनके पास जाना, एंड उसके बाद भी जब पहुंचे तो इट वाज लाइक ए डिस्ट्रक्शन। अगर दुर्वासा मुनि क्रोधित हो जाए, वो एक जो है हिस्सो एंग्री, मतलब हमेशा श्राप देने के लिए तैयार रहते हैं, और द्रौपदी रियली डर जाती कि अब तो मेरा अक्षय मैंने भी खा लिया है, तो अब अक्षय पात्र काम नहीं करेगा, तो अब मैं इनको कैसे खिलाऊं। एंड इमीडिएटली शी रिमेम्बर्ड कृष्णा है गोविंद, एंड तुरंत वो प्रकट हो गए। और हर चीज में देखे, जब उनका जब वस्त्र हरण भी जब हो रहा था, तो फर्स्ट शी वाज डिपेंडेंट ऑन अदर्स, लेकिन जब उसने दोनों हाथ उठा दिया कि हे मुरारी, हे गोविंद, मेरा कुछ नहीं हो सकता, अब आप ही मेरी रक्षा करो, एंड देन जिस प्रकार से आए जो वस्त्र के रूप में, तो दुशासन जिसमें 10,000 हाथियों का बल था वो भी थक गया,
ही वाज, बोले ये क्या चीज है ये, बोले आई एम नॉट एबल टू डू दैट। तो भगवान हमेशा रक्षा करते, ये चीज ये याद रखना है। लेकिन वी हैव टू बी हैव फेथ ना, एक फेथ भगवान पे रखना है। वी हैव टू बी डिपेंडेंट ऑन लॉर्ड कि हाँ भगवान मेरी रक्षा करेंगे। ऐसे नहीं हर बात में हम लोग की तलवार बाहर निकाल ले कि चलो मैं ही करता हूँ। इससे एक मुझे एक छोटा सा एक स्टोरी याद आया, जस्ट कनेक्ट विद दैट। एक बार एक जो भक्त था भगवान का, वो मतलब हमेशा भगवान को याद करता, भगवान उसकी जो मतलब रक्षा करते थे। तो ऐसा हुआ एक बार कि कुछ उसके ऊपर विपदा आ गई, तो भगवान को पुकारने लगा। तो उसको पेशेंस नहीं था, जब भगवान नहीं आया तो तुरंत वो जो था वो जो है रिटेलिएट करने के लिए तैयार हो गया। तो भगवान एक्चुअली आ रहे थे, लेकिन जब देखा उसको वो खुद रिटेलिएट कर रहा है, बोला ठीक है अब तुम करना है, तुम्हारे हाथ में, तुमको अपना मैटर्स तुमको खुद संभालना है तो तुम संभालो। एंड देन ही स्टॉप देयर। तो फिर वो पूछता है भगवान, तो बोला मैं तो आ रहा था, लेकिन तुमने जब मुझ पे भरोसा नहीं है तो फिर मैंने तुम पे छोड़ दिया, तुमको करना है तुम करो। और वी सी दिस इन द केस ऑफ द्रौपदी ऑल्सो। द्रौपदी पहले अपने पतियों पे, अपने पितामह भीष्म पे, द्रोणाचार्य जी पे थे कि ये लोग मुझे बचाएंगे। फिर देखा ये लोग भी नहीं बचा रहे, उनको पुकारा नहीं आया, तो फिर बोले मेरे 5 पति इतने स्ट्रांग, भीम जैसा है, अर्जुन जैसा, ये लोग बचाएंगे, वो लोग भी नहीं आए। तो फिर उसने अपना ताकत यूज किया, दोनों हाथों में साड़ी पकड़ लिया, बट वो भी उसका बेकार गया। तब उसने एक हाथ से छूट गया, तब दूसरा भी छूटने वाला था, दांत में पकड़ लिया, और दांत से भी जब लगा छूटने वाला है, देन शी रेज्ड हैंड। तो दिस इज व्हाट दैट सरेंडर लॉर्ड इज वांटिंग फ्रॉम अस। दैट सरेंडर इज रिक्वायर्ड कि तुम मुझ पर डिपेंड रहो, मैं तुम्हारा काम करूंगा। लेकिन हम लोग अपना करते, तुम्हारी जरूरत नहीं, मैं देख लूंगा। तो फिर भगवान भी बोलते ठीक है। भगवान भी तब तक नहीं आते जब तक हम दोनों हाथ नहीं उठा देते कि हाँ मैं हार गया, अब आपके ऊपर है। सो दैट इज द सारे ऑप्शंस एग्जॉस्ट कर लो, फिर मैं आऊंगा। तुम अपना दिमाग लगा लो। प्रभु जी, एक फ्रेज है जो हम काफी सुनते आ रहे हैं, मे बी डाइग्रेसिंग, बट आप मुझे वो एक फ्रेज का मतलब समझाइए। हम ऐसा सुनते आ रहे हैं कि गॉड ओनली हैव हेल्प दोज हु ट्राई टू हेल्प देमसेल्व्स। आई डोंट नो अगर आपने ये सुना है कि नहीं। या सुना है प्रभु। ऐसा बहुत से लोग ना फिलोसफी के नाम पे, जैसे किसी के तकदीर में हो सकता है राजयोग हो, वो एस्ट्रोलॉजर के पास जाए, बोले वो देख ले, अरे तुम्हारा तो राजयोग है, तुमको इतना धन मिलने वाला है, तुम्हारा ये होने वाला, वो होने वाला। वो सोच के अगर वो हाथ पे हाथ धरा बैठा रहे, पाँव पे पाँव रखे अपने एक जगह पे, तो दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। सम एफर्ट इज रिक्वायर्ड फ्रॉम आवर एंड। जैसे भगवान भगवत गीता में भी बोलते हैं, अर्जुन तुम सिर्फ युद्ध करो, तुम नहीं मारने वाले हो। और विश्व रूप में दिखाते हैं, अपने दांतों के बीच में सभी को चबा रहे थे वो, दे आर ऑलरेडी किल्ड, यू जस्ट बिकम अ पपेट। तो दैट एक स्मॉल एफर्ट जो हमको करना है। ऐसा नहीं है कि भगवान है तो सब भगवान कर लेंगे, मेरा काम देख लेंगे, मेरा परिवार चलेंगे, नहीं। जो बेसिक जो हम लोगों को एज ए ह्यूमन बीइंग जो कर्म करना है वो करते रहना है। लेकिन डोंट एक्सपेक्ट कि इसके बदले में ये होने वाला है या वो होने वाला है। अपना जो द्रौपदी के एग्जाम्पल में अगर द्रौपदी का एग्जाम्पल ले, तो द्रौपदी सबसे पहले कृष्ण को बुलाती तो वो नहीं आते थे। पहले तुम भीम को बुलाओ, 5 पतियों को बुलाओ, धृतराष्ट्र को बुलाओ, सब ट्राई करो, देन यू आर एग्जॉस्टेड, देन यू सरेंडर टू मी एंड आई विल कम टू योर रेस्क्यू। नहीं मतलब ऐसा नहीं बोल सकते, बट लेकिन ही जो दिस इज एक एक्सट्रीम जो है, इट्स एक्सट्रीम केस ऑफ इंसल्ट है, या कैलेमिटी बोल सकते हैं, विच हैपेंस। जैसे गजेंद्र का भी है, हम लोग सुनते हैं गजेंद्र भी। सो गजेंद्र ने सिर्फ क्या किया, अपने एक छोटा सा पुष्प उठा के भगवान को अपनी सूंड से अर्पण कर दिया। दैट एफर्ट ही डिड, एंड रेस्ट ही वाज टेकन केयर, दैट क्रोकोडाइल वाज टेकन केयर बाय द लॉर्ड। तो बेसिक कार्य आपने वो करना है, लेकिन भगवान पे भरोसा रखना है कि भगवान जो है आप मेरी रक्षा करो। और बोलते हैं ना कि व्हाट इज दैट, एक बहुत अच्छा श्लोक है, योगक्षेमम वहाम्यहम्, हमने सुना है वो श्लोक। वो बोलते हैं जो नहीं है वो मैं देता हूँ, और जो है मैं उसकी रक्षा करता हूँ। सो ये फेथ जब हमारा हो जाता है तो लॉर्ड श्योरली टेक्स केयर। तो भगवान पे भरोसा रखना है, भगवान पे छोड़ नहीं देना है। हाँ, ऐसा नहीं कि मेरा गाड़ी आप ही चलाओ, अपने आप चलते रहेगा। वो भगवान पे छोड़ दिया, ऐसा नहीं, पर भगवान पे भरोसा रहो, छोड़ मत दो उसको। यस।
Vishaka Mata, you want to add some points on this? प्रभु जी, as always, you have covered every possible aspect. तो कुछ रह नहीं जाता. मेरे पास तो कुछ ना कुछ स्टोरी याद आती है. जैसे अमोघ लीला प्रभु इज एन इंजीनियर. आप आशीष जी ऑनलाइन जाएंगे ना, अमोघ लीला प्रभु के लेक्चर जरूर सुनिएगा. He writes, I mean, he speaks in a very technical language because he's an engineer by profession. उन्होंने एक इक्वेशन दिया था. इसे देखो भाई, मैं तो इंजीनियर हूँ, मेरे पास एक इंजीनियरिंग इक्वेशन है, E plus P is equal to EP. वो मैंने लिख लिया था, इसलिए मुझे याद आ गया. याद रह गया. E मतलब E plus P is equal to EP. 100% effort. E for effort. 100% effort plus P plus 100% prayers is equal to EP. Everything perfect. Perfect. So nice. Very good. तो ये इस इक्वेशन के हिसाब से जीना है. लेकिन जैसे आशीष जी अभी कश्मकश में है कि एफर्ट सारा डालना है. द्रौपदी ने पहले इनको पूछा, उनको पूछा, वो मैसेज नहीं है इसका. एफर्ट डालना है, बट जैसे प्रभु जी आप बार बार बता रहे हैं हमें अप टिल वर्स 38, 39 जो आज जो किए हैं इन्होंने, जब जहाँ तक भी, all efforts have to be put according to dharma. हम efforts डाल रहे हैं whimsically, अपने हिसाब से. लेकिन भगवत गीता का चैलेंज ये है कि efforts 100% डालने हैं according to the rules and instructions of भगवत गीता. Then along with 100% prayers, your result you will get is EP, everything perfect. So I think धर्म को add करना है, that's the missing link. वही द रिमेनिंग 17 चैप्टर्स में कृष्ण यही बताएंगे अर्जुन को भी कि कंपैशन, ये सब वर्चूज बहुत अच्छी हैं. कंपैशन, टॉलरेंस, है ना, एंजॉयिंग मेंटालिटी, सब अच्छी है. सिर्फ इसमें धर्म मिसिंग है, इसलिए ये इस समय विषैली है. धर्म के हिसाब से कंपैशन रखिए, धर्म के हिसाब से एंजॉयमेंट करिए, धर्म के हिसाब से ड्यूटीज करिए, तो फिर ये कंपैशन इज वेरी गुड. Isn't it, प्रभु जी? Is my understanding right? Yes, yes. This is a very interesting statement. So I am looking forward for the. Bhagavad Gita is very interesting. Thank you so much, Prabhu, for yet another very interesting discussion. Thank you, Mataji. Thank you very much. But I only wish और लोग और जुड़ते रहें तो. Yes, प्रभु जुड़ेंगे. जैसे मुझे आज couple of people ने बोला वेकेशन टाइम है ना, थोड़ा एग्जाम्स खत्म हुए हैं, तो people are traveling. जुलाई में आप देखना people will come back. जैसे अनुष्का is traveling, है ना, सिंगापुर गई है, and couple of other people also. So ये लीन सीजन रहता है हर साल. थोड़ा सा people are traveling. People just take off. But yes, definitely, you know, for the it's enthusiasm. अगर नहीं होगा तो speaker का भी enthusiasm फिर कम हो जाता है, अगर participants का enthusiasm नहीं होगा तो. Yeah, that is very important. Yeah, our part we have to play very nicely. Response and enthusiasm both are required for the show to go on. Yeah. Yeah, but thank you. Thanks a lot, Prabhuji. Mancha Kalpataji. Thank you. चलो फिर अगले हफ्ते मिलते हैं हम लोग. हरे कृष्णा. Hare Krishna. Thank you, Prabhuji. Hare Thank you. Krishna. Thank you, Prabhu.